Good morning everyone. Today we will start new topic, the circle. Hi, good morning everyone. Today we will start our new topic, chapter 18, the circle. Here in this chapter, what we will study: the circle, its center, and radius. Different parts of the circle. What are the different parts of the circle? Terms related with circle. So, what are the terms that is connected with the circle, like segment, sector, secant, tangent, quadrant, ring, concentric circle, central ring. These are the different terms connected with the circle that we will discuss in this chapter. Then angle subtended by an arc, angle in a semicircle. Angle in a semicircle, then angle subtended by an arc. The tangent properties of a circle. So this concept we will clear in today's topic only. So here, so let us discuss about this earth. Look at this. So this is your globe, right? And this line we call it equator. So every location on the earth has a global address. Global address means that address lies on this globe. The locations are identified by the intersection of latitude and longitudes. Here are some lines. When you see that, these are some your latitudes and longitudes. When they are joined at particular location, so you can identify what is the address of particular country in the globe. The equator on the earth surface is the biggest latitude that divides the earth into two halves. The circumference of the equator is about 40,000 kilometers. So this is the concept about our earth. Firstly, think about that this was a circle, but no, it's not a circle. It's like a oval shape. Next is part of the circle. So in this, if you look at the part of the circle here, if you look at this, so in this circle, so this is a center O. So that point lies on the circle is, this is A and this is B. So O to A and O to B, we call it the radius, and this O point we call it the center of the circle. Remember one thing, center of the circle does not lie on it. Center of the circle does not lie on it means boundary of the circle. We never count any point which lies on the boundary of the circle is a center of the circle. Center of the circle always lies as center within the this line. The radius of a circle is always positive, like this. OA OB is the radius of the circle, that is a fixed distance from the center to the boundary of the circle. Doesn't matter whether you are in B, whether you are in A or somewhere else. The radii of a circle are equal in length, like this. Plural of the radius we call it radii, like OA OB. Like here another point will be there. So distance from the fixed point like center to the any point lies on the circle, we call it a radius. Circle is generally named after its center. If you want to keep the name of the circle, so always whatever you mark the variable at the center, so we always say that this circle with center O. So always when we call the name of the circle, so always name of the center represent the name of the circle. The circle has infinite radii. In one circle, we can draw unlimited radii because this is a fixed point and this is a circle boundary, and distance from fixed point to any point lies on the boundary, we call it a radius. So that means any point here, 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 that means in the boundary of the circle you can draw
number of points, and from that point to O point distance always fixed, that we call it a radius. But remember one thing, that point lies on the circle. So in this, if any points lies on the circle, so if you join that two points with one line, a chord of the circle is the line segment joining any two points lying on it. If you saw the figure here, if we have points AB and PQ lies on the circle, if I join this AB and PQ, that we call it a chord. Both lines shows as a chord, but any chord which passes through the center of the circle, we call it a diameter of the circle, means that divide the circle into two equal parts. A circle can have infinite chords and diameters. In this circle, you can draw unlimited chords and diameters. Why? Because in the boundary of the circle, so there is a no, there you can mark infinite points, and from infinite points you can draw many chords and diameter. Length of all the diameter of the circle is equal. If you draw diameter here, here, or any like chord passes through the center of the circle, always length of that diameter is equal. Why? Because that is the longest chord of the circle. Doesn't matter which way you draw on the circle, the diameter of a circle always passes through its center. That's why, because it passes through the center, longest chord of the circles. So that is the reason, any from any points, if you draw the line and that line passes through the center, that we call it a diameter, and half of the diameter is considered as our radius. Next is arc of a circle. So in this arc of the circle, actually this is your arc shape. Okay, so under this arc you will written AB, so that is arc AB. So that AB arc is an arc of the circle with center O. Okay, now when you join these two points with the center, that become the radius. Two radius and this one arc, that we call it a sector. Actually, if we discuss about the arc, so this is small arc and this is bigger arc. So according to their length, we can name that this is a minor arc and this arc we call it a major arc. Next is circumference of a circle. Boundary of the circle we call it. So this boundary of the circle, like if someone is standing here, it start moving like that from here to here and reach at the same point. So that boundary we call it a circumference or perimeter of the circle. The length of whole arc of a circle, or we can say that length of whole arc of a circle is called its circumference. Right? Next is a semicircle. So if in the circle there is a diameter, that line that passes through the center of the circle, that divide the circle into two equal parts, and each part we call it a semicircle. Next is interior. What is interior and exterior? Here, so if you look at this, in this shaded portion, this pink portion shows as your interior of the circle. I not lies on the line, that P not lies on the line, that lies inside the circle, and that Q point lies outside the circle. So that point P we call it interior, because that length center, any point that distance from the center from that point is less than the radius, we call it that point lies in the interior. And any point distance from center point of the circle to that point is greater than the radius or crosses the length of the radius, we call it exterior point. Next is
if you saw at this figure here, so this shaded portion we call it exterior region, and this unshaded portion we call it interior region. Next is your circular region. Circular region means circular area. That area come under the this boundary. This boundary. So we can say that any point which lies on the circular region, if and only if a distance from the center of the circle is equal to the radius, and if you check about this P point, P lies on the circular region of the circle. The set of all such point form the circular region. सर्कुलर रीजन मीन्स वो कौन से पॉइंट हैं जो सर्कल का एरिया आइडेंटिफाई करते हैं. आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट और बहुत सारे पॉइंट सेंटर से इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर है, जैसे यहाँ पे O से P है, O से Q है, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर हैं, और when you join all the points in the continuous line that make a circle, अगर आप उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो वो एक सर्कल बनाती है. और जो पॉइंट्स मिलके सर्कल बना रहे हैं और सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पर हैं या एक पर्टिकुलर पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर हैं, तो उन पॉइंट्स को हम कहते हैं वो सर्कुलर रीजन पर हैं या विद इन लाइज ऑन द सर्कल. और अगर पॉइंट अंदर होगा तो उसको बोलेंगे लाइज विद इन द सर्कल. एनी पॉइंट outside the circle we can say that point lies outside the circle, or any point lies on the boundary we call it a point lies on the circle. In this, suppose you have a cricket ground in the circular shape. जो बैट्समैन है सर्कल की उस सर्कुलर क्रिकेट ग्राउंड के सेंटर पे खड़ा है, ओके, एंड ही हिट्स 4 रन ट्वाइस. उसने 4 रन्स बनाए हैं, 2 बार उसने 4 रन्स बनाए हैं, हिट किए हैं, और वो 4 रन्स के और 2 बार सर्कल की जो सर्कुलर क्रिकेट ग्राउंड है उसकी बाउंड्री को टच किया. तो ईच टाइम बट इन डिफरेंट डायरेक्शन. दैट मीन्स अगर यहाँ पे आपका सर्कल है तो यहाँ पे अगर आपका क्रिकेटर खड़ा है तो उसने एक यहाँ पे 4 रन दिए और एक इस डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन पे 4 रन दिए. व्हाट डज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल डिनोट? बॉल ने जितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम बोलते हैं रेडियस आर. बॉल ने इतना डिस्टेंस कवर किया बाउंड्री तक इस सेंटर से. एंड व्हाट डज द एरिया कवर्ड बाय द 2-4 रन्स डिनोट्स? और जितना एरिया इन्होंने कवर किया है, व्हाट डज द एरिया कवर्ड रन्स दिए, दैट मीन टच द जो सर्कुलर ग्राउंड है, जो क्रिकेट ग्राउंड है सर्कुलर फॉर्म में, उसकी बाउंड्री को टच किया. यहाँ पे 4 रन दिए, यहाँ पे 4 रन दिए, ओके. तो जैसे ही यहाँ पे 4 रन दिए तो एक पार्ट आपका आ गया माइनर सेक्टर, सेकेंड पार्ट आपका जो मेजर एरिया आ जाएगा इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर. क्योंकि ये जो एरिया है एक पर्टिकुलर जैसे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है तो वो भी सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, क्योंकि अगर एग्जैक्टली डायमीटर सेंटर से निकलेगी तो वो सेमी सर्कल बन जाएंगे. बट अगर कोड सेंटर से पास ऑन नहीं हो रही तो वो 2 तरह के सेगमेंट मीन्स एरिया बनाती है. एक है माइनर सेगमेंट, एक है मेजर सेगमेंट. बड़े वाले एरिया को हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट और स्मॉल एरिया को हम बोलते हैं स्मॉल सेक्टर. द टर्म सेक्टर ऑफ द सर्कल, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने सेक्टर वर्ड दिया. क्यों हमने यहाँ पे सेक्टर वर्ड दिया? क्योंकि द टर्म सेक्टर ऑफ अ सर्कल रेफर्स टू द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन. तो ये सेक्टर वर्ड ये रेफर कर रहा है कि ये जो रीजन है, ए बी का रीजन है, इन्होंने सेंटर के साथ कितना एरिया कवर किया हुआ है, दैट रिप्रेजेंट द सेक्टर. नेक्स्ट है सीकेंट. सीकेंट है कि एनी कोड which does not stop at the boundary of the circle, or secant of a circle is the line which meet the circle in exactly 2 points but crosses. कि कोई ऐसी लाइन है जो सर्कल को क्रॉस करके बाहर जा रही है पर सर्कल में से कहीं पर भी पास ऑन हो रही है, ओके. मीन्स नॉट इन द सेंटर से पास ऑन करेगी. जनरली हम यही कह रहे हैं कि एनी लाइन विच पासेस थ्रू द सर्कल एंड कट्स द सर्कल इन 2 पॉइंट्स या जॉइन द सर्कल और इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 पॉइंट्स, सो दैट लाइन वी कॉल इट अ सीकेंट ऑफ अ
circle. Next is your tangent. Any line which touch the circle, not crosses the circle. एक लाइन जो सिर्फ सर्कल को टच करके जा रही है बट उसको क्रॉस नहीं कर रही, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट टू द सर्कल. और रिमेंबर वन थिंग कि सर्कल के सेंटर से टेंजेंट तक का जो डिस्टेंस है या टेंजेंट तक की जो लाइन है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है. दैट मीन्स वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है. सो दैट यू हैव टू रिमेंबर. एनी लाइन start from the center of the circle and touch the tangent that touches the circle, so that always make a 90 degree or perpendicular on the tangent. सर्कल के सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ होती है वो ऑलवेज टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर या 90 डिग्री का एंगल बनाती है. सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल. अब सर्कल का एक सेंट्रल एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब आप सर्कल को चेक करोगे यहाँ पे दिस इज योर सर्कल. ओके, सो यू वेरी वेल नो दैट कंप्लीट एंगल ऑफ द सर्कल इज 360 डिग्री. अगर मैं सर्कल को 2 सेक्टर्स में डिवाइड कर दूँ तो एंगल भी डिवाइड होगा. सेंट्रल एंगल यहाँ पर होता है सेंटर पे. अब अगर मुझे AOB लिखना है तो AOB मीन्स दिस इज माई AOB, सेंट्रल एंगल AOB. बट if I want to count this angle we call it reflex of angle. Reflex means opposite to angle OB, that we call it reflex of angle AOB. So that is a reflex of angle AOB and that we call it angle AOB, because we never count AOB as this angle. This is the opposite to angle AOB. That is because this complete angle is 360 degree. Suppose this angle is 90 degree. Okay, suppose this angle is 90 degree. So what will be this angle? This angle is 360 degree minus 90 degree. A circle. Quadrant of the circle means if you divide the circle into 4 equal parts, each part we call it quadrant of a circle. Concentric circle means if one circle is inside and one circle is outside. So doesn't matter it is only 2 circle, it can be many circle like 1 circle, 2 circle, 3 circle, or we can say that many circle with same center but different radius. We call it concentric circle. Suppose this distance is R1, this distance is R2, that is outer circle radius is R2 and inner circle radius is R1. So these are two different radius but center point is same for both the circles. So that we call it concentric circle. Then what about the ring of the circle? So if you think about the ring of the circle, if one circle is inside and one circle is outside, or you can say that area between two concentric circle, we call it a ring. Next, your exercise 18.1. You have to give some answer of this 18.1 exercise. So here state which of the following statement is true and which are false, that you have to tell. If you have diameter is the largest chord of a circle, is it true? Yes, this is true. Okay, next is your statement is diameter of a circle is 1/2 of its radius. Diameter of the circle is 1/2 of its radius. So this is false. Because why is it false? Because half of the diameter we call it radius. We never say that half of the radius is the diameter. So always radius is equal to the half of the diameter. Because next is if you have given diameter of the circle is 8 centimeter. If it has 3 radii R1, R2, R3, they doesn't say that these are different radii. They only said that one circle like here to half of the diameter. Mean R1 की value भी क्या होगी 8/2 and R3 भी क्या होगी 8/2. क्योंकि अगर आप एक सर्कल में अगर आपको डायमीटर गिवन है 8 सेंटीमीटर तो डायमीटर चाहे कहीं भी डायरेक्शन से ड्रॉ किया जाए, सर्कल के सेंटर से कोड पास ऑन करिए तो उसकी लेंथ ऑलवेज सेम होगी. तो दैट मीन्स R1, R2, R3 भी इक्वल होंगे. ओके,
चाहे रेडियस यहाँ पर हो, चाहे रेडियस यहाँ पर हो, चाहे रेडियस यहाँ पर हो, तो रेडियस कहीं पर भी ड्रॉ होगा एक सर्कल में। अगर उसका डायमीटर गिवन है तो डायमीटर का अगर हम हाफ कर देंगे तो वो रेडियस बन जाएगा। तो इसमें R1, R2, R3 तीनों की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 8/2 दैट इज 4। दैट मीन्स 4 + 4 + 4, तीनों रेडियस को आप जब ऐड कर दोगे 4 + 4, क्योंकि यू ऐड 3 टाइम द रेडियस, सो दैट गिव्स यू 12 centimeter. Next is and angle subtended by an arc. Angle subtended by an arc means circle. So angle formed by the two radii of an arc of a circle at its center, we call it angle subtended by an arc. जब दो रेडियस एक सेक्टर का एरिया कंसिडर करते हैं सर्कल में, और सर्कल की वो जो सेक्टर की जो आर्क होती है जिस सेंट्रल एंगल के साथ कनेक्टेड होती है सर्कल में, इसको हम बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। कि एक सर्कल की आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया है, दैट वी कॉल इट ऑलवेज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, दैट सर्कल के ऊपर। ओके, अब यही दोनों पॉइंट से अगर एक एंगल सर्कल के कहीं पर भी बनता है, जैसे यहाँ पे बना एंगल या यहाँ दोनों पॉइंट्स हैं, उनमें से जो लाइंस पास ऑन हो रही हैं, अगर वो सर्कल की बाउंड्री को कहीं पर भी टच कर रही हैं या वो एंगल बना रही हैं सर्कल की बाउंड्री पर, अगर एक आर्क सर्कल के सेंटर पे एंगल बना रही है और वही आर्क के जो दोनों पॉइंट है सर्कल की बाउंड्री पर कहीं पर भी एंगल बना रहे हैं या जॉइन हो रहे हैं, एंगल बना रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल है इस वाले सेंटर एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। और वी कैन से दैट ये वाला जो एंगल है जो सर्कल के ऊपर जो लाई कर रहा है, दैट इज द हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल, और सेंटर एंगल इज double of that angle. In simple words, I can say that कि सर्कल के जो सेंटर पे जो एंगल बनता है, जो आर्क सर्कल के सेंटर पे एंगल बना रही है, वही आर्क जो सर्कल की बाउंड्री पर ज्वाइन होके कहीं पर भी वो एंगल बना रही है, सेंटर का एंगल उस एंगल से ऑलवेज डबल होगा। The angle subtended by an arc at the center of the circle is double the angle subtended by the same arc at any point on the circumference of the circle. In simple words, I repeat, that is the important property. Any arc which make a circle which make the angle at the center of the circle, any arc which make the angle at the center of the circle, that angle is always double of that angle which lies on the boundary of the circle with same arc. जैसे यहाँ पे इस आर्क ने सेंटर पे एंगल बनाया और सेम आर्क सर्कल की बाउंड्री के साथ भी टच करके एक एंगल बना रही है, तो ये वाला एंगल का डबल सेंटर एंगल होगा। कि यहाँ पे जो एंगल होगा अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो एग्जैक्टली यहाँ पे सेंटर एंगल बनता है। दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ओके, सो व्हाट हैपन, अगर आपका जो सेंटर ऑफ द ये जो सेक्टर है वो एग्जैक्टली डायमीटर के इक्वल हो जाए। अब जैसे ये देखो, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, अब अगर ये डायमीटर है तो यहाँ पे देखो ये कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री। ओके, स्ट्रेट लाइन विल मेक्स यू एंगल 180 डिग्री। अब 180 डिग्री का हाफ अगर क्या होगा कि अगर ये वाला जो ए बी है, एक तरह से ये सेक्टर ही है, दैट इज टू इक्वल सेक्टर्स। ओके, अब ये जो सेक्टर है या ये जो आर्क है, ये वाली ए बी आर्क, इसने सेंटर पे एंगल बनाया 180 डिग्री। ओके, अब यही आर्क जब सर्कल के ऊपर एंगल बनाएगी, सर्कल की बाउंड्री पे एंगल बनाएगी, वो इस एंगल का हाफ होगा। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय अ सर्कल। सो 180 का हाफ क्या हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ से मेरा एक कंडीशन भी अराइज होती है कि एंगल्स लाइज इन द सेमी सर्कल ऑलवेज
राइट एंगल और 90 डिग्री। एक सेमी सर्कल जो एंगल बनाता है सर्कल में वो ऑलवेज 90 डिग्री और राइट डिग्री ही बनाता है, राइट एंगल ही बनाता है। सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। सो ये हमें कहाँ पे यूज़ करनी है ये प्रॉपर्टी? जब भी हमें एक एंगल की आइडेंटिफिकेशन होती है, हमें यहाँ पे एंगल दिया होता है, हमें वो एंगल निकालना है जो सर्कल के ऊपर लाई करता है बट कनेक्टेड विद द सेम आर्क। एक सेम आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाती है और एक सर्कल के ऊपर एंगल बनाती है, तो वो जो सेंटर पे एंगल बनाएगी सर्कल के एंगल से ऑलवेज डबल होगा। ये प्रॉपर्टी थी। तो उसके अकॉर्डिंग टू ही अगर आपकी ये जो सर्कल है सेमी सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है, तो सेमी सर्कल के अकॉर्डिंग टू क्या होगा कि यहाँ पे एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री, because that is the half of the central angle or central angle is double of that angle. Next second property is, अगर आपके पास सेम आर्क सर्कल पे दो डिफरेंट जगह पे एंगल बना रही है पर सेंटर में नहीं बना रही, तो हम सेंटर नहीं यहाँ पे काउंट कर रहे, मैं सिर्फ यहाँ पे ये काउंट कर रही हूँ कि वो वाले जो ए बी सर्कल पे क्या एंगल बना रही है। ये वाली एक ए बी सी एंगल सर्कल पे भी बना रही है और ए बी डी एंगल भी बना रही है। दिस मीन्स ए बी जो आर्क है, ये वाली ए बी आर्क है, दो एंगल बना रही है, एक एंगल सी बना रही है, एक एंगल डी बना रही है। तो यहाँ पे जो एंगल सी बना रही है डी बना रही है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। दैट इज अ सेकेंड प्रॉपर्टी। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट मीन्स ए डी बी ए सी बी, क्योंकि कनेक्टेड क्या है दोनों ए बी के साथ, डी एंगल भी ए बी के साथ कनेक्टेड है, सी एंगल भी क्या है ए बी के साथ कनेक्टेड है। तो हम कह सकते हैं कि जो दिस एंगल डी और दिस एंगल सी लाइज इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल ओ। सर्कल, क्योंकि सर्कल का नेम हमेशा हम सेंटर से ही लेते हैं, तो सर्कल ओ है, सर्कल विद सेंटर ओ एंड सेगमेंट इज ए बी। जो ए बी के साथ कनेक्टेड सेगमेंट है उसमें दो एंगल्स आ रहे हैं जो सर्कल को टच कर रहे हैं, सी एंड डी, तो ये आपस में इक्वल होंगे। अब तक हमने 3 प्रॉपर्टीज की हैं दैट वी हैव टू अप्लाई इन अवर एक्सरसाइज 18.2। तो 3 प्रॉपर्टीज क्या हैं? एक ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो यही थी मेन कि एक जो सेगमेंट है सर्कल के सेंटर पे एंगल बना रही है और वही सेगमेंट सर्कल के ऊपर बाउंड्री पे एंगल बना रही है, तो सेंटर वाला एंगल बाउंड्री के एंगल से डबल होगा। और ये है कि अगर वही एक सेगमेंट जो है, एक आपकी आर्क है, सेंटर की बजाय को कहीं पर भी सर्कल की बाउंड्री पे दो एंगल बना रही है, तो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब यहाँ पे जैसे मेरा एक क्वेश्चन है आपके पास, ये मेरे पास फिगर है, इसमें आपको क्या करना है, मुझे बी ओ सी ये एंगल निकालना है, बी ओ सी। अब यहाँ पे मैं सर्कल की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी जहाँ पे जैसे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क की प्रॉपर्टी। ओके, अब यहाँ पे देखो आर्क क्या है मेरे पास? ए सी, दिस इज अ माइनर आर्क। ओके, अब ये आर्क सर्कल के सेंटर के साथ ए ओ सी इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क, एंगल सबटेंडेड एट द आर्क एट द सेंटर। आर्क ने जो सेंटर पे सर्कल बनाया और वही आर्क ने जो सर्कल की बाउंड्री पे आर्क बनाया, दैट इज सर्कल की बाउंड्री पे जो एंगल बनाया दैट इज 32 डिग्री। अभी जो मेरी प्रॉपर्टी थी कि सर्कल की जो एक आर्क है सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाती है और सर्कल की बाउंड्री पे जो एंगल बनाती है, तो जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाएगी बाउंड्री वाले एंगल का डबल होगा। दैट मीन्स अगर ये 32 है तो ये वाला पूरा एंगल क्या हो जाएगा जो सर्कल के सेंटर पे बनता है, दैट इज 32 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 64 डिग्री। यहाँ पर ये वाला पूरा एंगल क्या बन जाएगा? 64 डिग्री, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी थी कि एक आर्क जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाएगी वो सर्कल के ऊपर अगर सेम आर्क बनाती है तो उसका डबल हो जाएगा सेंटर में। तो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा एंगल मेरा कितना हो जाएगा? 64 डिग्री। अब 64 डिग्री में ऑलरेडी आपको 40 डिग्री गिवन है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? तो अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो इसको मैं क्या करूँगी? टोटल 64 है, तो 64 डिग्री माइनस 64 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो 64 डिग्री माइनस 40 डिग्री,
तो जब आप 64 में से 40 डिग्री माइनस करोगे तो दैट गिव्स यू 24 डिग्री। दैट मीन्स ये वाला जो मेरा एंगल है ये बन जाएगा मेरा 24 डिग्री। दैट विल बी माई 24 डिग्री। और मुझे सिर्फ इतना ही फाइंड आउट करना था। तो इसी टाइप से एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। अब मेरी जो नेक्स्ट है आपकी ट्राई आउट 1 की फिगर। यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है। BC जो है सेंटर से पास ऑन कर रही है, दैट मीन्स द डायमीटर, दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। और डायमीटर ऑफ द सर्कल मीन्स दीज आर द टू सेमी सर्कल। और मेरी एक प्रॉपर्टी थी कि अगर सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल ऑलवेज सर्कल के ऊपर क्या बनाता है, 90 डिग्री। ये मेरा आ गया एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है आपका सेमी सर्कल। 180 डिग्री या वी कैन, अगर मैं इसमें एंगल सबटेंडेड बाय आर्क की प्रॉपर्टी लूँ कि जो BC आर्क है सेंटर पे 180 बना रही है, तो वही आर्क सर्कल के ऊपर कितना बनाएगी, हाफ ऑफ 180 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। अब एक ट्राइंगल में मेरे पास 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, मुझे ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल B एंगल। तो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो प्लस है वो कितना होता है, 180 डिग्री। सो दैट मीन्स 90 प्लस 30 आपका 120 हो गया। तो 180 में से जब मैंने माइनस 120 किया तो दैट गिव्स मी 60 डिग्री, दैट गिव्स मी 60 डिग्री। सो दैट मीन्स ये जो मेरा एंगल है ये होगा मेरा 60 degree that we have to find. Next figure is this figure. Okay, if you look at this figure, इस फिगर में ये बोला गया कि आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ABC। आपको ये एंगल गिवन है 54 डिग्री और ये एंगल गिवन है 100 डिग्री। अब ये डायमीटर नहीं है, दिस इज नॉट अ डायमीटर। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये वाला मेरी ABC जो ट्राइंगल है उसमें एक एंगल गिवन है, तो अगर मुझे ये ढूंढना तो मुझे ये एंगल पता होना चाहिए। अब मेरे पास एक रूल है कि अगर एक आर्क सर्कल के ऊपर कितने भी एंगल बनाए वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट वी जस्ट डू एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल इक्वल। अगर आर्क सेम है, आर्क सेम के ऊपर सर्कल के ऊपर कहीं पर भी एंगल बने तो वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये 100 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 100 अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। तो ये एंगल भी मेरा क्या होगा, 100 डिग्री, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी यही कह रही है कि जो AB है सेगमेंट है वो D के साथ भी कनेक्टेड है और C के साथ भी कनेक्टेड है। और अगर सेम सेगमेंट कितने भी एंगल के साथ कनेक्टेड हो, वो जो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं तो वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वहाँ से ये आइडेंटिफिकेशन आई कि ये वाला एंगल CD आपस में इक्वल है बिकॉज ऑफ माई प्रॉपर्टी यू हैव टू मैंशन। ओके, अब यहाँ पे 100 आ गया, ये वाला 100 डिग्री है। नाउ वी नो नीड ऑफ दिस 100 डिग्री। हमें सिर्फ इस ट्राइंगल पे कंसंट्रेट करना है, इसमें सिर्फ 54 डिग्री गिवन है, 100 डिग्री आ गया आपके पास। मुझे ये सिर्फ एंगल B निकालना है, दैट इज ABC। तो पहले तो मैं इसको प्लस कर लूँगी, 100 प्लस 54 कितना हुआ, 154। और एक ट्राइंगल का सम प्रॉपर्टी क्या है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री से जब आप 154 माइनस करोगे दैट गिव्स यू 26 डिग्री। तो दैट मीन्स ये जो मेरा एंगल आ जाएगा दैट इज 26 डिग्री। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज योर थिंकिंग कैप क्वेश्चन। इन दिस थिंकिंग कैप क्वेश्चन you have to find angle BOC. BOC means ये वाला एंगल, BOC means this one angle। अगर यहाँ पे लिखा होता रिफ्लेक्स ऑफ BOC तब आप यहाँ पे BOC कंसिडर करते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ BOC। बट यहाँ पे BOC दिस small, that is less than 180 degree, so that angle we call it BOC। but what we will do in this case, first we have to find this angle। so how I can find this angle? इसमें हम दोनों प्रॉपर्टीज यूज करेंगे जो हमने अभी स्टडी की है। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन है मेरी, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये 120 है तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से जब आपने 120 माइनस किया, ये भी स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन की तरफ देखोगे तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये तो एंगल आपके आ गए 60 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है आई विल राइट इट हियर, दिस इज 60 डिग्री। और ये वाला एंगल जो यहाँ पे है
60 डिग्री। इसको मैं थोड़ा एलैबोरेट कर देती हूँ और दैट विल बी ईजियर फॉर यू। यहाँ पे जो एंगल आ गया आपका, ये आ गया आपका 60 डिग्री, ये वाला एंगल। यहाँ पर भी जो एंगल बना, ये भी आपका बना 60 डिग्री। दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। अब मुझे मेन बी ओ सी पे कंसंट्रेट करना है, तो मैं कोई भी एक ट्राइंगल ले लेती हूँ। ओके, तो अगर मैं ये ट्राइंगल ले लूँगी तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। कंडीशन वही आएगी कि अगर मेरे पास ए और डी किसी तरह से एंगल आ जाता है, क्योंकि ये जो आप देखो बी और सी, जो बी सी है, यहाँ पे जो बी सी है, बी सी सेंटर एंगल के साथ भी कनेक्टेड है, बी सी ए और डी के साथ भी कनेक्टेड है। तो मुझे अगर कोई भी एंगल मिल जाता है, ए या डी कोई भी एंगल मिल जाता है, तो आई कैन ईजिली फर्स्ट फाइंड रिफ्लेक्स ऑफ द बी ओ सी। ओके, तो मुझे इस तरह से फाइंड आउट करना। तो अगर मैं सपोज इसको मान के चलती हूँ, तो ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री होगा। ऑलरेडी यहाँ पे 25 डिग्री ये वाला गिवन है, तो मुझे सिर्फ क्या निकालना है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी से ये डी एंगल निकालना है। तो जो डी एंगल होगा वही ए के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों बी सी के साथ कनेक्टेड है। सेम एंगल जो सेम आर्क के साथ कनेक्टेड होंगे, जो सर्कल के बाउंड्री पे लाई करेंगे, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए, जैसे ये मेरा एंगल आ गया 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री, 60 डिग्री, 25 डिग्री, और डी एंगल ढूंढने के लिए अगर मुझे एंगल डी ढूंढना है, तो 60 डिग्री प्लस 25 डिग्री, ये मेरा बन गया 85 डिग्री, दिस इज 85 डिग्री। सो यहाँ पे एंगल डी ढूंढने के लिए 180 में से क्या करेंगे, 85 माइनस कर देंगे, क्योंकि एक ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मेरा एंगल क्या होना चाहिए, एक ट्राइंगल के अंदर सम ऑफ एंगल्स इन द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अगर उसमें 2 एंगल्स के बने, एक 60 डिग्री और 25 डिग्री, इन दोनों को ऐड किया तो मेरा पास आ गया 85 डिग्री। और 85 को 180 में से माइनस करोगे तो दैट विल गिव यू 95 डिग्री, दैट मीन्स दैट इज 95 डिग्री। यहाँ पे ये 95 डिग्री आ गया, तो दैट मीन्स ये जो मेरा एंगल है, ये आया मेरे पास 95 डिग्री, दैट इज 95 डिग्री। अब BC के साथ D कनेक्टेड है, तो मुझे दोनों में से एक ही एंगल चाहिए था, तो D आ गया 95, और ये जो रिफ्लेक्स ऑफ BC है, हम इसको डबल नहीं करेंगे क्योंकि ये उसकी तरफ है, तो हम ऑपोजिट साइड देखेंगे। तो ये वाला जो एंगल आएगा, ये BOC, रिफ्लेक्स ऑफ BOC, अगर मैं BC की तरफ देखूं तो BC सेंटर पे ये वाला एंगल बना रही है, और इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल है D। तो ये वाला एंगल क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क प्रॉपर्टी, हम क्या करेंगे, इस 95 का डबल कर देंगे। तो ये एंगल क्या होगा, 95 इंटू 2 डिग्री, 95 इंटू 2 डिग्री, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। अब 95 इंटू 2, जब आपने इसको 95 इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ आपका 190 डिग्री। सो दिस इज 190 डिग्री। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स ये एंगल आपका 190 डिग्री आ गया। अब ये वाला एंगल मुझे ढूंढना है बेसिकली, जो मेरे पास BOC था। तो एक कंप्लीट एंगल जो सर्कल के सेंटर पे होता है वो होता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री में से आपने 190 माइनस करना है। तो आप लिखोगे कैसे यहाँ पर, दैट इज एंगल, सो आई विल राइट इट हियर, सो एंगल BOC is equal to 360 degree minus 190 degree. So that gives you 170 degree. So that means that is your required angle that we have to find. Thank you.